یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مکرم میاں محمود احمد صاحب جماعت جینگن 11 فروری 2023 کو 88 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم میاں محمود احمد صاحب کے متعلق ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ میاں محمود احمد صاحب پیدائشی احمدی تھے۔ ان کے والد محترم کا نام علم دین صاحب تھا، جنہوں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ جزمان منڈی ضلع بہاولپور کے علاقے میں احمدیت کی سخت مخالفت کے باوجود بڑی مجاہدانہ اور باوقار زندگی گزاری۔ خلافت سے انتہائی محبت رکھتے تھے۔ خلیفہ وقت کے خطبات سنتے ہوئے اشکبار ہو جاتے تھے۔ 1999 میں جلسہ سالانہ پر لندن گئے، پھر حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کے حکم پر دونوں میاں بیویاں جرمن چلے آئے۔ بیت الصبوح میں شعبہ سمی بصری اور ریسیپشن میں کئی سال خدمت بجا لاتے رہے۔ 2007 میں ان کو وصیت کرنے کی بھی توفیق ملی۔ چندوں کی ادائیگی میں ہمیشہ سبقت لے جاتے تھے۔ نماز اور تلاوت قرآن پاک باقاعدگی سے کیا کرتے تھے۔ حاجت مندوں کی ضروریات پوری کرنے میں بھی ہمیشہ پیش رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفت کے باوجود یزمان منڈی کے لوگ بہت عزت کرتے تھے۔ پسماندگان میں انہوں نے اہلیہ چھوڑی ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں۔ تدفین بھی پاکستان میں ہوگی انشاءاللہ۔ یہاں ہم بیت الصبوح میں جو کام کرنے والے کارکنان ہم جانتے ہیں کہ مکرم میاں محمود احمد صاحب سب کے ساتھ ہی پیار و محبت سے پیش آتے تھے۔ خاص طور پر واقفین زندگی کے ساتھ تو انتہائی محبت، پیار اور عزت کے ساتھ ہمیشہ پیش آتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول کرتے ہوئے ان کے اگلی منازل کو آسان فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اپنے پیاروں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے اور جو حقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے، چل نہیں سکتی کسی کی کچھ قضا کے سامنے۔ دوستو، یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں محترم محمود بٹ صاحب کے، یہ ہر انسان کی زندگی کا مقدر ہے۔ ایک دن ہم نے بھی بالکل ایسے ہی کسی جگہ ہونا ہے اور دوست ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے۔ جتنی اچھی کوئی زندگی گزار کے جائے گا، جتنی لوگوں کی مدد کرنے والا اور جماعت کی خدمت کرنے والا، اتنے ہی اچھے الفاظ میں لوگ انہیں یاد کریں گے۔ آج ان دیدار کے مناظر کے ساتھ ایک تدفین کی اطلاع بھی دینا مقصود ہے۔ ہمارے ایک دوست محبوب حسن دھاریوال، جو کہ ادھر بیت الصبوح میں ہر سال رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ان کے بھائی کمال حسن اور علی عباس یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ان کی والدہ کی جو نماز جنازہ اور تدفین ہے وہ جمعرات والے دن فرید برگ کے قریب ایک علاقہ ہے فرید ہوف لیمسائن، وہاں ہوگی 2 بجے۔ تو دوست جن کے پاس وقت ہو وہ اعلیٰ ثواب کی خاطر وہاں ضرور شامل ہوں۔ حدیث آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ثواب رکھا گیا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ جو بھی بندہ شریک ہوتا ہے جی، جس طرح اسلامی تعلیم ہے کہ جب کوئی انسان دنیا سے جائے تو جو اس کی اچھائیاں ہیں وہ عموماً بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جو ابھی ہمارے سامنے محمود صاحب بٹ صاحب، انہوں نے بڑی خدمت کی توفیق پائی ادھر بیت الصبوح۔ ان کے بھتیجے اس وقت ہمارے ساتھ، اپنا نام بتا دیں
मेरा नाम खालिद भट्ट है। खालिद भट्ट साहब, हाँ जी। तो आपके ये चचा थे? मेरे ताया थे। ताया थे। तो कब से आप इनको ज़्यादा करीब से जानते हैं? ये मैं इनको जब मैं जर्मनी आया हूँ उसके अच्छा। बाद इनसे मुलाकात हुई है। ज़्यादा थोड़ी आवाज़ हो। इनसे ज़्यादा ताल्लुक़ बढ़ा है मेरा ना। अच्छा 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 जब ये पाकिस्तान में थे उस वक्त तो इतना मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। अच्छा अच्छा। मेरे वालिद साहब बताते हैं, मेरी वालदा बताती हैं कि ये बहुत अच्छे इंसान थे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ऐसे ताल्लुक़ रखा था जैसे कोई बाप रखता, क्योंकि वो दादा वो फौत हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। तो इन्होंने ही हमारी सारी बच्चों की परवरिश वगैरह की है, हमारा ख्याल रखा है। सही और है। जब मैं इधर आया हूँ हमारे साथ भी इन्होंने बड़ा अच्छा मेरे साथ ताउन किया है, मेरे साथ हर किस्म की तो इन्होंने। ये पहले से यहाँ जर्मनी में थे आप? हाँ बाद जी, में? ये 99 में है। हाँ जी, 99। फैमिली के अंदर कोई इनका ऐसा कोई जैसे मदद हाँ बाकी जी, अफराद? फैमिली ऐसे थी कि ये छुप के जो है फैमिली के, मतलब वो डायरेक्ट किसी के साथ ऐसे नहीं कि बता के, मगर ये कि खुदा दस इंसान थे ना बहुत ज़्यादा। सही है। तो इस तरह ये बहुत से जब अहमद नगर में हम रहते थे सारे, सही। तो उधर लोग बताते हैं कि ये उनकी मदद किया करते थे। अच्छा। हम भाइयों के साथ, इधर उधर सारों के साथ मुलाकात वगैरह या इस तरह। तो ये तजुर्बा तो शुरू से थे। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नमाज के खिलाफत के साथ ऐसे जुड़े हुए थे कि कभी खुतबा मिस करते ही नहीं, सोच भी नहीं सकते। हमें भी कभी इस इधर उधर देखे तो हमें तो पकड़ कर लाते हैं खुतबा सुनते। बाज़ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो छुपी होती हैं, जब इंसान जाता है दुनिया से तो फिर वो दुनिया पे ज़ाहिर होती हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि खुतबों का बहुत ज़्यादा आज के दौर में जैसे हम सब के लिए सुनने के लिए बेताब होते हैं बात। चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, तो बाकी फिर इंशाल्लाह ताला शुक्रिया। अस्सलाम। ले जी, जैसा मैंने जिक्र किया कि जब भी कोई शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसके अंदर जो खूबियाँ जो वो दूसरों तक पहुंचनी चाहिए, और फिर आखिरी वक्त में जो टाइम गुजरा होता है। अभी मेरे इल्म में आया, मेरे एक दोस्त से मुलाकात, वो कहने लगे जी मुझे उन्होंने मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। और फिर मैंने सारी कार्रवाई डॉक्टरों के पास जाना, और आखिरी टाइम पे जो जो हुआ, तो उनके भाई मेरे साथ इस वक्त दाऊद साहब मौजूद हैं। वो थोड़ा, क्योंकि बहुत करीब रहे हैं, इनके वालिद साहब के बड़े अच्छे ताल्लुक, बड़े दोस्त से करीबी, तो थोड़ा अगर बताना पसंद करें दाऊद साहब इनके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहायत अफसोस की बात है कि मुकर्रम मोहतरम महमूद अहमद भट्ट साहब जो समी बसरी और रिसेप्शन पर काम करते रहे हैं पुराने वक्तों में, और साथ मेरे वालिद साहब भी होते थे, तो कुदरती दोनों का नाम महमूद था, उनका भी नाम महमूद अहमद और इनका नाम भी महमूद अहमद, और ये भट्ट थे। तो बहरहाल बहुत ही अफसोस हुआ है उनके जाने का। तो हमें उनके साथ रहने का भी मौका मिला है, हमारे पास रहे हैं कुछ अर्सा वो, तो उनकी खिदमत करने की तौफीक मिली है, क्योंकि उनके यहाँ औलाद वगैरह या कोई बहन भाई या अजीज़ रिश्तेदार जो है ना वो यहाँ नहीं है जर्मनी में, वो अकेले ही रहते थे। उनकी पहली वाइफ जो है वो फौत हो गई हुई हैं, और ये दूसरी उनकी वाइफ हैं जो पाकिस्तान है, और वो यहाँ नहीं आ सकी। इसलिए लोगों को मैंने अंदर बता दिया है, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने चाहा कि इसके अंदर वो भी मैं बात बता दूँ। वालिद अल्लाह ताला तरीके रहमत करे, उनके दराजात बुलंद फरमाए, और उनकी खिदमात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस्लामी तालीम के मुताबिक जब भी कोई शख्स दुनिया से जाता है तो उसके अंदर जो खूबियाँ छुपी होती हैं, जो जाने के बाद अमूमन ज़ाहिर होती हैं, वो दूसरों तक पहुँचाई जाएँ ताकि वो लोग उससे इस्तिफ़ादा करें। तो आज हमारे साथ एक दोस्त हैं, अपना तारुफ भी करवाएंगे, और फिर महमूद भट्ट साहब जिनकी वफ़ात हो गई, अभी हमने जनाजा पढ़ा, उनके अंदर जो खूबियाँ इन्होंने पाई वो भी बयान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब मेरे पास तकरीबन 8 माह से रह रहे थे, और माशाल्लाह बहुत जैसे कहते हैं ना जमात के साथ वो बहुत उनका तल्लक था, और कुरान मजीद का ऐसे वो तकरीबन इतना लगाव था कि हर वक्त वो कहते थे कि मैं बस यही पढ़ता रहूं, और उसकी अभी वो तफसीर के वो कुछ लिख भी लेते थे, और उसमें गहराई में जाके ना उसका तजिया करते थे, और तकरीबन 1 माह में 3 दौर वो कंप्लीट करते थे। 1 महीने में 3 दौर? 3 दौर, हाँ जी, कुरान पाक के? बिल्कुल। हफ्ते में 1 बार
कई बार कर लेते यानी रमज़ान के अलावा ये आप बात कर रहे हैं? रमज़ान के अलावा। अच्छा। जब भी मैं काम से आता था या जब भी देखता था, वो जब भी फारग होते थे कुरान मजीद पढ़ रहे होते थे। अच्छा, माशा। खाना खाया, बैठे, और वो उनको टीवी शीवी से इन चीज़ों से कोई नहीं। अच्छा। अगर उनको मेरा बेटा अगर दे देता था कुछ चीज़ लगा के, तो वो खुतबात के, हुजूर के, खलीफा राबे के जो सवाल जवाब की महफिलें या ऐसी चीज़ें वही सुनते रहते थे। बस जमात के कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी रखते थे और खुतबा बाकायदगी से सुनते थे। अब जब तक वो चल फिर सकते थे थोड़ा बहुत, वो मेरे साथ मस्जिद में जुमा पढ़ने हम जाते थे इकट्ठे। कौन से शहर? उजिंगन में। उजिंगन मस्जिद में। ठीक ठीक, अच्छा। मैं लेके जाता रहा उन्हें। सही है। तो अब वो कुछ तकरीबन 2 माह से तकरीबन ज़्यादा वीक हो गए थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया नहीं था कि शुगर है मुझे ना, तो हमें इतना पता नहीं था। अच्छा, हम तो नॉर्मल उन्हें खाना जैसे जो रूटीन के मुताबिक थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि बदपरहेजी हुई है उनसे भी, उन्होंने बताया नहीं। फिर वो थोड़ा सा उंगली का पहले इन्फेक्शन हुआ था, उंगली गल गई थी, उसकी वजह से हमने उन्हें भेजा करंकना उसमें। अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे उन्होंने चेक किया, वो कहते नहीं उंगली अकेली नहीं है, वो आगे तक है, तो इफेक्ट हो गया ज़्यादा। बाकी लोगों के साथ जो उनका था मिलना जुलना, या वो अभी आपने सुना होगा रब्बी साहब ने भी जो हाँ जी बताई बिल्कुल, हाँ जी। यहाँ वो मरकज़ में भी काफ़ी माशाल्लाह एक्टिव रहे हैं। उन्होंने कई अहदों पे काम किया, अहदों पे या जो भी जमाती खिदमत करते रहे हैं ना, रिसेप्शन पे भी और समी बसरी शोबे में भी। अच्छा। मैं बजाते खुद भी उनके जानता हूँ, पहले जब वो कभी कभी CD या केस लेनी ना उनसे, अच्छा। तो वो देखा था उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं जो आपके मेरा ख्याल राइट साइड पे खड़े हैं, इन्होंने मेरा ख्याल बताया था कि इनको मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। साहब हैं ये, उनके असल में इनके थ्रू ही मैं मेरे साथ मुलाकात। अच्छा ये लेके आए थे। इनके वालिद साहब का नाम भी महमूद, उनका नाम भी महमूद, उनकी दोस्ती। शायद साहब बताते कि दोस्त थे। अच्छा अच्छा। तो फिर उनकी वजह से ये भी उनको बेटे जैसे ही अच्छा समझते थे, और ये भी उनको अपने बाप की हैसियत से मतलब ये मैं यहाँ पाकिस्तान में तदफीन का वो बता रहे थे कि उनकी क्योंकि वाइफ वहाँ है और उनकी ख्वाहिश भी थी, इसीलिए पाकिस्तान में अब उनकी तदफीन का रखा गया है। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू।